how the advertising is important for today's business. So basically, the subject is the advertising and sales management. We will be covering everything related to the advertising in this subject. Starting with what is advertising. So basically, जैसे कि हम सब जानते हैं, in today's business, advertising is the utmost thing important which is being used in every type of business. हर type के business में it is equally important, because अगर आपके पास system है, अगर आपके पास business है and you are not advertising your business well, that means you are not able to grow your business. Advertising should be in a proper way. Advertising should be in channelized way, rightly channelized होनी चाहिए, because अगर आपकी advertising is poor, that means you will not be able to get the qualified leads for your business, and eventually you will not be able to promote your business as you want it to be. बिकॉज कोई भी बिजनेस पर्सन हो, वो यही चाहते हैं कि उनके बिजनेस में उनको उनका बिजनेस ग्रो करे, एंड ग्रो करने के लिए उनकी एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल सही तरीके से होनी बहुत जरूरी है. Initially, the types of advertising were different, but eventually, as the time passes, there are different types of advertising which we are implementing today's time. So before going to the next topic, what is advertising, we should start with that. So advertising is a marketing communication strategy used by the business and the organizations to promote product, services, or ideas to target audience through the various media channels. So it is a paid promotion or a paid form of communication designed to input, persuade and remind consumers about the brand, product or services. ऐसा नहीं होता कि अगर आप अपनी एक बार एडवर्टाइजमेंट कर देते हो, तो एडवर्टाइजमेंट इज बेसिकली टू टेल द पीपल व्हाट यू आर एंड व्हाट सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आइडियाज you are providing to them, how your product is important to the customer, how it will be beneficial, how it will be as good as their different type of requirements are being concerned. अगर हम एग्जांपल लेते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, आज की डेट में आपने देखा होगा इंस्टाग्राम इज फुल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स. जैसे कि आप अगर स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात करते हो, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अपनी एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, एंड दे आर प्रमोटिंग देमसेल्व्स ऑन सोशल मीडिया. बेसिकली they want to target the audience who are the youth for that. So youth is mostly on the Instagram, so they are promoting themselves for the Instagram. Similarly, अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया, अगर हमने एडवर्टाइजमेंट की बात सीधा ही डायरेक्ट अगर हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के साथ, तो सोशल मीडिया में सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं आता. सोशल मीडिया में फेसबुक भी है, फिर सोशल मीडिया में यूट्यूब भी है, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम भी है. But why these ads are kept on seeing on Instagram? There is a targeting. So targeting जो आपकी होती है, that is very important. Spending time on and the money on different platforms in the greed of leads, that will be definitely burning your कॉस्ट. द रीजन बिहाइंड दैट विल बी कि अगर आप अपनी कॉस्ट को बिल्कुल सेटअप करके, आप अपना एक बजट सेट करके अपनी एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट की या अपनी सर्विसेज की, यू शुड नो these three basic things before advertising: that what the channel should be used, number two, who will be your target audience, and what is the idea of capturing the leads for your business. So if you know all these things, then you can only proceed in the advertisement in the right way. सो नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होती है? इट इज अ पेड कम्युनिकेशन. ऑब्वियसली आप जब एडवर्टाइज करते हो अपने आप को, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है. आप किसी भी चैनल पे, किसी भी प्रॉम्प्ट पे, किसी भी पोर्टल पे आप अपने आप को एडवर्टाइज करना चाहते हो, तो इट विल बी अ पेड प्रमोशन ऑलवेज. नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है. अनलाइक द डायरेक्ट सेलिंग, एडवर्टाइजिंग रीचेज एज अ मास ऑडियंस. आप डायरेक्टली किसी के पास जाके अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे हो, आप एज अ मास टारगेट कर रहे हो ऑडियंस को, एंड वहां पे जाके आप अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हो. परवेसिव इन नेचर, दैट मीन्स इट इज द मेन गोल इज टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर. अब पर्सन कैसे हैं, आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, क्या आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में जिसको लेके आ रहे हो, उसको लॉन्च करने से पहले आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, आपकी व्हाट इज द मेन यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट जो कि आप अपने कंज्यूमर को टारगेट करने के लिए उसको यूज कर रहे हो. एक एग्जांपल देना चाहती हूँ मैं. आज की डेट में दो कॉम्पिटिटर्स जो हैं एट द टॉप एट दिस मोमेंट इज गोइंग ऑन. फर्स्ट इज पिलग्रिम, जो स्किन केयर दे रहा है. नहीं, थ्री कॉम्पिटिटर्स हैं. पिलग्रिम है जो कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको दे रहा है. सेकंड इज प्लिक्स एंड थर्ड इज हाइफन.
सो ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं आपके, बेसिकली अगर आप इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, सो यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर अबाउट ऑल 3 कॉम्पिटिटर्स हु आर गिविंग देयर एड्स इन अ डिफरेंट टाइप्स। सो अगर आप हाइफन की बात करते हैं, हाइफन कृति सेनन एक्ट्रेस है जो, उनका ब्रांड है, एंड दे आर बेसिकली प्रमोटिंग द स्किन केयर प्रोडक्ट्स, क्लेमिंग दैट कि उनके प्रोडक्ट्स आपकी किसी भी स्किन टोन को, किसी भी स्किन टाइप को सूट कर देते हैं। एंड दे आर प्रोवाइडिंग द सिरम्स जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, they are using the oils and the water based things which are actually helpful for your skin, and वो gradually आपकी स्किन को ब्राइटन करती है, एंड आपकी स्किन केयर के टाइप के, हर तरह के टाइप के वो सूट करती है। सिमिलरली अगर आप प्लेक्स की बात करते हैं, अगर आप पिलग्रिम की बात करते हैं, तो ऐसे ही ये भी इनके कंपटीशन में सेम तरह के सिरम्स जो हैं, या सेम तरह के जो मॉइस्चराइजर्स जो हैं, या जो भी स्किन क्रीम्स हैं, वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। विच मीन्स कि वो आपको इन्फ्लुएंस कैसे कर पा रहे हैं। बेसिकली क्या है कि हम जो एक यूथ हैं आजकल के, हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं कि जिस चीज की प्रमोशन बहुत ज्यादा हो रही है, व्हेन व्हेन दे आर रीटारगेटिंग यू, आपने एक बार ऐड देखी, यू लाइक द प्रोडक्ट, and now they are retargeting you because they understood your mind that you are interested in this product. So basically अगर आपने उनकी पूरी ad देखी है, तो they will be retargeting you, which will definitely at some point of time influence you, and आप उनके influence में आगे वो product एक बार जरूर buy करते हैं, because आप बार बार वो चीज देखते हैं। and जब आपके सामने वो बार चीज आती है, and everyone in this world is, especially in India, Punjab, due to this dust and everything, we all are facing some issues related to skin. So हमें ये लगता है कि if they are claiming for all skin types, it definitely may help my skin. So spending 1000 or 500 or 700 on one product, if my skin will get better than before, then what is the harm of buying a product? Let's try once वाली जो एक पॉलिसी होती है, वो कंज्यूमर की जिस भी बिजनेस पर्सन को समझ में आ जाती है, दे विल बी सक्सीडेडली गोइंग फॉर दिस 110%। उनको ये लगता है कि दे विल डेफिनेटली बाय इट फॉर द वंस और ट्वाइस, एंड उनको एक बार तो बाय हर कोई पर्सन करके देखेगा ही देखेगा, इफ योर स्ट्रेटजी इज वेरी गुड फॉर द कंज्यूमर्स। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स, द एडवर्टाइजर्स इज ऑलवेज नोन ब्रांड, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। सो जो भी स्पॉन्सर करते हैं, जैसे आइडेंटिफाइड करना उनको, कि जैसे मैंने अभी 3 एग्जांपल्स लिए आपके पास, तीनों स्किन केयर प्रोडक्ट्स की एग्जांपल्स है, मतलब ऑब्वियसली दे आर डीलिंग इन अदर प्रोडक्ट्स आल्सो, बट आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन दीज डेज, चाहे वो बॉयज हैं चाहे वो गर्ल्स हैं। एंड यस, अगर मैं बात करती हूँ हाइफन की, यस, अगर हम बात करते हैं हाइफन की, तो हाइफन का जो प्रोडक्ट है, Kriti Sanan is basically either she or the strategist she's having, that is the excellent person who is going for the advertising, because first उन्होंने एक shot निकाला है, that is a serum. So that serum is basically having some like very less type a quantity of the oil, and mostly like 80% quantity of a water, and that is the 2 shots. So उसका जो एक उन्होंने जो लेआउट बनाया है, वो इस तरीके से बना रखा है कि जो ऑयल है दैट इज नॉट गेटिंग मिक्सड विद द वाटर, एंड जो ऑयल है वो ऊपर सरफेस पे रहता है, ऑयल जो वाटर है वो नीचे रहता है। सो इनिशियली शी स्टार्टेड विद द गर्ल्स, कि जो भी इंडोर्समेंट उन्होंने शुरू की, जो भी एडवर्टाइजमेंट उन्होंने शुरू की, दैट स्टार्टेड विद द गर्ल्स। तो गर्ल्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थी, या गर्ल्स जो भी जो डिजिटल क्रिएटर्स होती हैं, उनको यूज किया, उनको बोला कि लाइक दे हैव गिवन द प्रोडक्ट टू देम, and they used that and they showed the result. And similarly later on the same product have been used by the boys to promote this, that it is a unisex product, basically the person who are girls or who are boys, they both can use it. So basically एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हो। सो दिस इज हाउ यू आर गेटिंग द फेथ ऑफ योर कंज्यूमर्स, द फेथ ऑफ योर कस्टमर्स, कि वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो करके दे विल डेफिनेटली बाय इट, एंड एवरीवन वांट्स टू एनहांस देयर स्किन, राइट। सो उसके लिए फिर चाहे वो कोई मेल है या फीमेल है, if the promotion says that, तो definitely they will be proceeding for the same. सो वो प्रोडक्ट जो पहले हम सिर्फ गर्ल्स के लिए सोच सकते थे, नाउ दे आर एडवर्टाइजिंग इट फॉर द बॉयज ऑल्सो। सो दे आर एडवर्टाइजिंग देयर ब्रांड, देयर कंपनी, देयर शी इज द मेन
she herself is doing the endorsement for her brands. So इसी तरीके से she is sponsoring her own project on product to the customers, so that कि आप उस चीज को यूज करो, उसके रिजल्ट्स को देखो, एंड उसको आप हमें टेस्टिमोनियल्स बना के भेजो उसके रिजल्ट्स के ऊपर, so that हम उसके ऊपर फिर पेड प्रमोशंस लगाएं, एंड दिस इज हाउ दे आर प्रमोटिंग themselves. So these are the different type of advertising skills or the strategies to promote any business or service. सो नेक्स्ट इज द मल्टीपल मीडिया यूजेज। अगेन जो भी मैंने आपको बताया कि आप कौन कौन से सोर्सेज को टारगेट कर रहे हो, डिपेंड करता है। अगर आप मान लीजिए आज से नॉट मोर बट यस 5 years बैक अगर मैं आपको जाने को कहूँ, तो 5 years बैक तक जो एक टीवी का क्रेज था, 5 to 7 years चले जाएंगे बैक हम, एक टीवी का जो क्रेज था अमंग द किड्स, दैट वाज टू मच। तो बच्चों में क्या था, हम बच्चों को टीवी लगा के देते थे, उनमें जो कार्टून कैरेक्टर्स होते थे वो हम शो करते थे। तो जो एंडोर्समेंट करने वाले लोग थे या जो बच्चों के रिलेटेड प्रोडक्ट्स के एंडोर्समेंट करते थे, वो अपना मोस्टली किसके ऊपर करते थे, टीवी के ऊपर करते थे। तो वो क्या दिखाते थे, टेलीविजन के ऊपर अपनी जितने भी ब्रांड्स होते हैं, चाहे वो बेबी प्रोडक्ट्स हैं, बेबी ऑयल है, बेबी पाउडर है, उनके कुछ क्लोथ्स हैं, उनकी कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स, एनीथिंग और एवरीथिंग दे शो ड्यूरिंग दोज टीवी शोज के बच्चे देख के। अब जैसे किंडर जॉय हो गया, चॉकलेट्स हो गई, कैंडीज हो गई, जेलीज हो गई, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर रिलेटेड टू द किड्स। अब आपको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आप अगर सोशल मीडिया पे कर रहे हो, तो डू यू थिंक दैट इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोटिंग योर सेल्फ? This is how, when you are trying to advertise yourself, you have to be very much clear about what is your targeted audience and आपकी जो advertisement है वो कहाँ पे होनी चाहिए। We have multiple type of medias जहाँ पे हम जैसे टीवीज हो गए, रेडियोज हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, सोशल मीडिया हो गया, बिलबोर्ड्स हो गए, पैम्फलेट्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स वी कैन यूज टू एडवर्टाइज आवर सेल्फ। बट वी हैव टू मेक श्योर दैट कि कहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट को है जो प्रमोट करना है, जहां से हमें क्वालिफाइड लीड्स मिल सके, जहां से हमें ऑर्डर्स रिसीव हो सके। That is the basic motto of running the an advertisement. Otherwise, spending money on advertisement make no sense if you are not getting leads out of that. नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज। द मैसेज इज अ यूनिफॉर्म फॉर ऑल द ऑडियंस। अब जो मैसेज आप उनको दे रहे हो, एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, जो हाइफन की एग्जाम्पल मैंने आपको बताई है, उसके लिए एक मैसेज आता है कि दिस इनहेंसेस योर स्किन, वेदर यू आर अ मेल, वेदर यू आर अ फीमेल, वेदर यू आर अ किड, वेदर यू आर एनीबडी और एवरीवन, this product is for everyone and that is what you all need. You don't need any moisturizer, you don't need any serum extra, you don't need to apply anything on your skin, you just apply one serum and that's it, you are ready to go. So this is what the all and one product which you will be using for your skin, and eventually for the proper use you will enhance your skin tone and texture also. So एक standardized message है कि वो product आपके लिए क्यों useful है, क्यों आपको उस product को use करना है. So once you are convinced with the message, that means that you are ready to go and here you are going to buy the product. क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, जो भी आप अपना मैसेज दे रहे हो, इट हैज टू बी वेरी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। कुछ भी आप लोगों को कॉपी करके नहीं करना चाहिए आपको। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो उनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको टारगेट करके अपनी प्रमोशंस करते हैं, विच इज नॉट एथिकली राइट। एंड इसीलिए जो टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, यहाँ पे तो सारी कॉपीराइट्स चलते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी कॉपीराइट इश्यूज आ भी जाते हैं तो दैट इज निग्लिजिबल। बट एज फार एज द सोशल मीडिया has been concerned, अगर वहां पे आपको कोई कॉपीराइट आ जाता है तो दैट इज एक्चुअली अ बिग थिंग। तो कॉपीराइट आएगा तो आपका पूरे का पूरा अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया जाता है, राइट? दो तीन वार्निंग्स आती है, देन इट इज बीन सस्पेंडेड। द रीजन बिहाइंड दैट इज व्हाट, कि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म फॉर द प्रमोशन दीज डेज एंड दैट इज ऑन द बूम। अगर आपके पास आप उन चीजों को प्रमोट करने के लिए कुछ गलत तरीके यूज कर रहे हो, किसी को डीफेम कर रहे हो, या किसी की बैड ट्रेड्स को शोकेस करके आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड ऑन सोशल मीडिया। एज फार एज आप न्यूज़पेपर की बात करते हैं, न्यूज़पेपर में तो होता ही ये सब कुछ है। एज फार एज आप रेडियोज की बात करते हैं, रेडियोज में भी कॉपीराइट्स आ जाते हैं, बट रेडियो पीपल, द पीपल हु आर रनिंग दोज चैनल्स, दे आर नॉट प्रमोटिंग दिस प्रैक्टिसेस, सो दैट इज वाई दैट इज ऑल्सो सेफ। एंड द बिलबोर्ड्स दैट यू ऑल नो, कि हम जब बाहर जाते हैं तो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, उनके ऊपर उनकी एडवर्टीजमेंट लगी होती है, उनके मॉडल्स की पिक्चर्स लगी होती है, चाहे वो कोई गोल्ड स्मिथ हो या कोई ज्वेलरी की शॉप हो, तो अपने प्रोडक्ट को वो बहुत हाईलाइटेड करके उसमें दिखाते हैं, सो दैट द पीपल शुड गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड पीपल शुड गेट इम्प्रेस्ड
or they can visit our stores so that we can showcase the other products to them as well. Wide reach, it can reach to the local, national, and global audience. That is not a bar. Wherever you want your audience to be fetched, you can fetch, but the strategies should be fine enough to target the right audience. Is that clear, everyone? The nature is clear to everyone of advertising? Yes, ma'am. Great. So the next is scope of advertising. As we have seen, what is advertising, what is the nature. So when we are talking about the scope, where is the scope of the advertising? Number one is the commercial advertising. It promoting the product and the services to boost the sales. Obviously, मेरा एक business है, मैं अपने business को promote करना चाहती हूँ. मैं अपने business में, let's suppose मैं 500 per day लगा रही हूँ अपने ads पे, right? मैं अपनी ads लगा रही हूँ. अपनी ads के लिए मतलब मैं 500 रुपया per day लगा रही हूँ. Plus उसके ऊपर से मैं GST भी pay कर रही हूँ. बिकॉज ऑनलाइन आप कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, एड नहीं लगा सकते जिसमें आपका जीएसटी डिडक्ट नहीं होता. सो इफ यू आर स्पेंडिंग 500 पर डे, 5 डेज की भी एड आप लगाते हो, ठीक है, तो 2500 तो आप ऊपर से स्पेंड कर रहे हो, प्लस उसके ऊपर 18% जीएसटी आप पे कर रहे हो, तो इट इज अबाउट 2700 समथिंग. So approx nearly if you are spending 3000 in 5 days, what do you expect? You must not get even a single lead out of that. That means you're burning your money. So the scope of the advertisement is कि जब आप कोई भी ad लगाते हो, you have to make your target set. आपका इतना बजट होना चाहिए, इस बजट में आप इतने दिन की ad लगा रहे हो, इसमें से आपको इतने fruitful results आने चाहिए. अगर आपको इतने fruitful results नहीं आ रहे हैं, then you have to find out the root cause. या तो आपके मैसेज में प्रॉब्लम है, या तो आपकी जो आप कन्विंस करना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम है, या तो आप जो जिस पे एड लगा रहे हो, या तो आप किसी वीडियो पे एड लगा रहे हो, विजुअल्स पे लगा रहे हो, या तो फिर आप किसी स्टैटिक पे लगा रहे हो. मैं अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, बिकॉज आज की डेट में हम एड्स, मुझे जहां तक लगता है, हम सोशल मीडिया पे ही देखते हैं. डू यू गाइज वॉच टीवी? यस गाइज, डू यू Yes, गाइज ma'am. वॉच टीवी? Ma'am, matlab very sometimes, like, because OTT platform has changed our shift towards the things. Actually, yes, right. So basically, the people who are staying back at home, they rarely use or used to watch TV. So अभी क्या है कि there are some good daily soap या कुछ ऐसी चीजें, या कुछ motivational या कुछ religious ऐसी चीजें होती हैं which influence people to watch TV nowadays. अदरवाइज आज की डेट में OTT प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरे का पूरा आपका जो स्पैन है वो चेंज कर दिया. Whenever whatever you want to watch, you can just plug in and you can watch it, right? So basically, आप watch करते हैं TV. I'm glad and I'm really happy, so that it may also increase my knowledge while talking to you. So you just let me know, whenever you watch TV, do you find your advertisement are that much impressive which you find on OTT platforms or the social media, if you compare both? No, ma'am. Whenever we see actually advertisement on a television screen, it is more related to cultural life or something like that. कुछ ऐसा content रहता है. But when we see it on Instagram, they relate it more towards your daily life. जो आज modernity है, उसमें उसके अंदर you are able to see that modernity in the advertisement. राइट. एंड अनटिल एंड अनलेस आप किसी चीज के बारे में सोचते नहीं हो, या कुछ किसी चीज के बारे में बात करते हो, हैव यू एवर फील कि मैंने तो सिर्फ बात की थी एंड आई एम गेटिंग ऑल रिलेटेड टू दैट टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट्स? Many times, ma'am. Many times. डिड यू एवर ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन फॉर द सेम? Yes, ma'am. The thing is that people general language में बोलते हैं कि phone हमें सुन रहा है, but we think as people who are educated, we think that this is a kind of thing that actually phone is listening to us. मतलब वो channelize करते हैं, जो search engine optimizations है वो हमें उस चीज़ पे ले जाते हैं, है ना, वो चीज़ हमें बार बार दिखाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, because we are continuously talking about that. And ऑब्वियसली कंपनीज नो कि इनको अगर ये देख रहे हैं या सोच रहे हैं तो इनको कैसे उसके थ्रू वहां तक लेके आना है, परचेज तक लेके आना है. Yeah. So basically, it's really very true that the phone is listening to us. It is 110% right. The point is that we do have smartphones. Smartphones, every app you are using, whether it is Blinkit, whether it is Zomato, whether it is, say, Flipkart, or any other shopping app, or any app, whenever you download that app, there is one recommendation. Do you want to want this app to access your
mic, you access your location. So हम बिना सोचे समझे sometimes in hurriedly what we used to say, we okay everything. So in that case what is happening, we intentionally giving access to the apps कि आप हमारी चीजों को सुनो. Right. So if you will close all these notifications, you will never be able to see such kind of things. Right. So never ever in your life you will feel like कि मैं हम जो भी बात करते हैं या whatever we are watching या discussing, whatever it is related content, we are watching it. So basically it is just a help. जितने भी आपके social media related apps हैं या जितने भी आपकी shopping apps हैं या जितने भी आपकी जैसे online ordering apps हैं, ये आपसे access मांगती हैं आपके mic का for your better convenient, whatever you are thinking. It is for the right and good job, but on the other thing there is also a negative impact of this on the society. But basically it is just to help you guys कि आप जो सोच रहे हो वो चीज हम आपको आपके रिलेटेड पूरे के पूरे इंटरनेट से ढूंढ के दें, so that you can be easily finding it for your convenient. So this is how the advertising plays role in today's time. इनिशियली क्या होता था, इनिशियली जब हम अपनी एडवर्टाइजिंग करते थे तो हम भेजते थे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को या अपने पर्सन्स को या अपने सेल्स मैनेजर्स को या सेल्स पर्सन को कि वो अलग अलग जगहों पे जाएं, जाके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, अपने प्रोडक्ट की यूएसपीज बताएं, उनके बेनिफिट्स बताएं, एंड वहां से उनसे बात करके अपनी जो है एक लीड्स लेके आए. आज की डेट में ये सब कुछ नहीं चलता. जहां पे एक फोन बिना आपके ऑपरेशन के या बिना आपके एक्सेस किए आपकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो एडवर्टाइजर्स को दे रहा है, कंपनीज को दे रहा है, इंटरनेट को दे रहा है, एंड ऑन दैट वेरी रिटर्न यू आर गेटिंग द यू नो आउटकम्स ऑफ दैट वट एवर यू आर प्लानिंग टू बाय. सो उस चीज में क्या हो जाता है, आपका जो रिसर्च है वो इजी हो जाता है, एंड कंपनीज को अपना प्रोडक्ट बेचना भी इजी हो जाता है. सो इट इज द विन विन फॉर बोथ द एंड्स. कस्टमर्स के लिए भी विन विन है, एंड ऑन द अदर हैंड कंपनीज के लिए भी विन विन है. So this is how the advertising on a social media and social advertising is being concerned today's time. Now that political advertising used by the political parties to influence voters. अब स्कोप एडवर्टाइजमेंट का आता है, एडवर्टाइजमेंट सिर्फ और सिर्फ हम कमर्शियल यूज के लिए नहीं कर सकते, सोशल एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते. जैसे कि हम मान लीजिए अगर आप हेल्थ के रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं उसके रिलेटेड आप अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन के रिलेटेड कर रहे हैं, पब्लिक सेफ्टी के रिलेटेड कर रहे हैं. बट येस, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो भी अपने लिए अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, बट दे हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द पोर्टल वेयर दे आर प्रमोटिंग देमसेल्व्स. सो उसके लिए भी वो किसी और को डिफेम नहीं कर सकते. जैसे कि आप अगर जनरल रैलीज की बात करते हैं, वहां पे तो आप देखते होंगे कि बहुत लोग एक दूसरे को डिफेम कर देते हैं ऑन माइक, लाइक लाइव जब भी वो स्टेज पे होते हैं, दे डिफेम वन अनदर एंड देन दे प्रमोट देमसेल्व्स. बट सोशल मीडिया पे ये चीज आप पॉसिबल नहीं कर सकते. एंड ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो अलाउड फॉर द political parties also to get promote themselves in the advertisement. Not only political parties but the lawyers, like the solicitors, they if they want to जो बैरिस्टर्स होते हैं, अगर वो किसी भी उनकी अगर कोई भी उनकी वोटिंग जो होती है उसके अकॉर्डिंग भी दे कैन यूज द एडवर्टाइजिंग फॉर देयर प्रमोशंस. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग. बिजनेस प्रमोट्स देयर प्रोडक्ट ग्लोबली. इसमें कभी भी आप ये नहीं होता कि आप एक रीजन में रह के अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, बट येस, टू प्रमोट योर बिजनेस एनीवेयर इन इंडिया देयर आर डिफरेंट नॉर्म्स एंड डिफरेंट सर्टिफिकेशंस टू बी मेड बिफोर प्रमोटिंग योरसेल्फ इन आउट ऑफ इंडिया. बट हाँ, ये चीजें होती हैं प्रमोट करने के लिए देयर इज नो एज सच रूल, बट येस, अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जाना चाहते हो देयर आर सम सर्टेन रूल्स that have to be followed as far as the advertising is being concerned. रिटेल एडवर्टाइजिंग, लोकल बिजनेस यूज एडवर्टाइजिंग टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. अगर आप लोकल बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप रिटेल करते हो, तो आप लोकली अपने आसपास के लोगों को ही अपनी लाइक वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप अपनी प्रमोशन कर सकते हो, या आप कुछ अच्छे डिस्काउंट्स लगा के या ऑफर्स लगा के कर सकते हो. समटाइम्स कुछ ऐसा होता है कि somebody is visiting your store and they're having a child, so you are offering free of cost a chocolate to the child. That is how you're dealing with the localized person that been concerned, and this is how you're promoting yourself as a good dealer in the society or in a place at that moment. Online and digital advertising involves platforms like Google Ads, Facebook Ads, influencer marketing, etc., which I already have discussed with you. So these are the basic scopes of advertisement. Advertising, it has been concerned on every type of platform, every industry, every work, every type of if you say every type of industry and business, they can promote themselves on the any platform.
Next comes is the functions of advertising. So there are basically three types of functions, if, as far as the functions are being concerned: the primary function, secondary function, and the social functions. So when we talk about the primary functions they create demand. सबसे पहला जो फंक्शन होता है, एडवर्टाइजमेंट आपकी चल रही है, आपकी एडवर्टाइजमेंट क्या करेगी, आपकी एडवर्टाइजमेंट कोई देख रहा है तो आपको सबसे पहला जो बेनिफिट दे रही है वो क्या दे रही है, उसका फंक्शन क्या हो गया, दे क्रिएटेड डिमांड, अनाउंसेस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो किस तरह की है, आप किस तरह का आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हो मार्केट में, न्यू प्रोडक्ट लाना चाहते हो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हो। सो ये आपके प्राइमरी फंक्शंस हो जाएंगे कि किस तरह की आप मार्केट करना चाहते हो। तो उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट में जाने के लिए कौन से आपके प्राइमरी फंक्शंस रहते हैं, दैट यू हैव टू नो। सो नाउ फर्स्ट द थर्ड वन इज द प्रमोट्स न्यू यूज ऑफ द प्रोडक्ट। अब हो सकता है कि कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे हैं, ये प्रोडक्ट अब यूजफुल है आपके अदर बेनिफिशियरी एनी अदर बेनिफिट्स के लिए भी, तो उसके लिए आप कैसे आप एड एक रन कर सकते हो। इन्फॉर्म अबाउट द चेंजेस इन द प्रोडक्ट प्राइस एंड प्लेसमेंट, उसके लिए भी आप अपनी एंडोर्समेंट कर सकते हो। अनाउंस स्पेशल ऑफर्स एंड स्कीम्स, रिमाइंड्स द यूजर, क्रिएट्स ब्रांड प्रेफरेंसेस। अब आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी एड्स होती हैं जिसमें कि आप एक बार ही एड देखते हो, फिर काफी टाइम के लिए वो एड आपकी विजिबल नहीं होती, फिर कुछ टाइम बाद एड होती है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल फॉर दैट इज देन एप्पल। एप्पल डजंट पब्लिसाइज देमसेल्व्स वेरी इजीली। वो बहुत कम एड रन करते हैं एंड वो ओनली एक बार एड रन करते हैं अपना, जब उन्होंने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, अदरवाइज वो किसी भी प्रमोशनल एक्टिविटी में नहीं है। उनका जब भी कोई एक नया प्रोडक्ट या कोई भी नया फोन, नई सीरीज, कोई नया फोन है या एयरपोर्ट्स हैं या आप मैकबुक्स हैं या उनकी कोई भी प्रोडक्ट जो न्यू लॉन्च होना होता है जब, या न्यू उनकी सीरीज आनी होती है, तो ही वो अपनी एंडोर्समेंट करते हैं, अदरवाइज दे डोंट डू एनी एंडोर्समेंट। दे डोंट टेक एनी पर्सन कि आप कोई सेलिब्रिटी को ले रहे हो अपने प्रमोशन के लिए, नो, दे जस्ट फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट फॉर द प्रमोशन। सो दीज आर द फंक्शंस, एवरी इंडस्ट्री एवरी पर्सन फोकसेस ऑन द डिफरेंट थिंग्स। सो एप्पल ने जो अपनी मार्केट बनाई है, व्हाई द फोन्स आर कॉस्टली, द रीजन बिहाइंड द क्वालिटी, एंड ऑफ कोर्स द दे आर द पर्सन जो कि अपने सिर्फ क्रीम यूजर्स को ही टारगेट करते हैं एंड उनको ही अपने प्रोडक्ट्स को शो करते हैं। एंड दिस इज हाउ दे आर मेकिंग देयर ब्रांड अ क्वालिटेटिव एंड एन एक्सपेंसिव ब्रांड, जिसकी वजह से वो डेली इंडोर्समेंट, डेली अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, किसी से इंडोर्समेंट कराते नहीं है, अपने प्रोडक्ट को ही शोकेस करते हैं अपनी एड में, उनके फीचर्स एंड उनके जो न्यू फीचर्स आने वाले हैं वो ही बताते हैं, उसके अलावा दे नेवर टॉक अबाउट देयर प्रोडक्ट। So these are the very basic and primary functions which an advertisement does. The secondary functions are that helps to boost the morale of the salesman and other employees. अब secondary क्या है, जब आप ad लगाते हो या किसी से आप sales करवाते हो, कोई आप advertise कर रहे हो किसी चीज की, इससे क्या होता है कि जो भी salesman होता है, अगर वो salesman आप, चाहे वो salesman है या आपकी ad set करता है या ads expert है या किसी भी तरीके से, मैं दोनों चीजों को साथ लेके चलूंगी, because in today's world there are very less people who are sending salesperson to the other people. So the advertisement is online these days, that is why I'm combining both the things, कि एक तरह जो आप अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो वो सेल्समैन को बूस्ट करती है, अगर उनको अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनको पता है कि मुझे पूरी नॉलेज है, मुझे मेरी कंपनी ने पूरी नॉलेज बताई है हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, हमारे सर्विसेज के बारे में, एंड व्हेन दे टॉक अबाउट your product to the other people, they feel motivated, and once they get converted then even they feel मोटिवेटेड। दैट सपोर्ट सेल्समैन। अब आप सेल्समैन को जो बेसिक सैलरी तो देते ही देते हो एंड ऑफ कोर्स उसको इंसेंटिव देते हो, तो वो एक कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट भी करता है। रीच कस्टमर्स लेफ्ट बाय द सेल्समैन। सेकेंडरी फंक्शन आपके ये भी हो सकता है कि जो आप लोगों तक अपने सेल्समैन को नहीं पहुंचा पाते, somehow somewhere you have other options nowadays to reach those people where the salesman is not getting approached। हेल्प्स टू प्रोक्योर बेटर एम्प्लॉयज। अब इस तरह से क्या हो रहा है कि हमारे पास हम बहुत अच्छे एम्प्लॉयज को प्रोक्योर करके रख सकते हैं, दे हैव अ गुड क्वालिटी एंड द कमांड ओवर देयर स्किल्स, जिनको की सेल्स स्किल्स बहुत अच्छे से आते हैं। दैट अनाउंसेस द लोकेशन, डीलर्स एंड स्टॉकिस्ट टू सपोर्ट देम। अब इसमें क्या है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहते हो, अगर आप एडवर्टाइज करते हो, अपनी कोई एडवर्टाइजमेंट लगाते हो, तो उसमें आप क्या करते हो कि उसमें आप उन लोगों को भी अनाउंस करते हो या उन चीजों को भी अनाउंस करते हो जो कि एक सेल्समैन आगे जाके नहीं बता पाता, जैसे आपकी लोकेशन हो गई, आपके डीलर्स कौन कौन से हैं, आपके साथ कितने लोगों ने काम किया हुआ है, किन लोगों के लिए आपने काम किया हुआ है। एक एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको, जैसे कि अगर आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक आपके पास कोई सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है,
XYZ, कोई भी कंपनी है। अब वो कंपनी अपनी प्रमोशन कैसे करेगी? वो सर्विस प्रोवाइड करेगी, उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, राइट, बट दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। अब सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए क्या करेंगे? जिनके लिए उन्होंने काम किया है उनको ही शो करेंगे। द बिग ब्रांड्स, द जायंट ब्रांड्स दे हैव वर्कड विद, they will showcase them that we have worked for them, we have made the social media setup for them, we have made the websites for them, we have made the softwares for them, we have, like, that is the services they are providing, right? अब एक प्रोडक्ट तो है नहीं कि एक प्रोडक्ट है वो पूरी की पूरी आप कम्युनिटी को शोकेस कर रहे हो कि दिस इज माय प्रोडक्ट। जैसे मैंने हाइफन की एग्जांपल दी, दैट वाज अ प्रोडक्ट बेस्ड एग्जांपल। नाउ आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ व्हाट अ सर्विस बेस्ड एग्जांपल। सो अगर आपने किसी को सर्विसेज दी है, हाउ विल यू प्रमोट योरसेल्फ ऑन द एडवर्टीजमेंट? सो आप क्या करोगे? उनके लोगोस को यूज करोगे, उनके नेम्स को यूज करोगे, उनकी आइडेंटिटी को यूज करोगे टू प्रमोट योरसेल्फ दैट वी हैव डन वर्क फॉर बिग जायंट पीपल to set up their businesses. So if you want to get your business settled with us, I am there, I can help you out on that. So this is what a concise and very short message to influence people to work with you. So this is how basically we work in a service sector. Is that clear, everyone? The secondary functions are clear? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज द सोशल फीचर्स। सो सोशल फीचर्स क्या कहते हैं हमें? इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑब्वियसली अभी मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, मैं भी अपने घर में बैठी हूँ, हम क्या कर रहे हैं? अपने घरों में बैठ के एक ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप अटेंड कर रहे हो, आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, राइट? अब इस दौरान क्या आपकी अभी कोई और एक्टिविटीज साथ में चल रही हैं? कोई ऐसी चीज हो रही है कि जो आपको लगता है कि आपके एंड से होने वाली है? अब आप ये देखें, आप अपने घरों में बैठे हुए हैं, आप हो सकता है many of you or any of you while listening to me you might have ever, not always, ever used your phone। आप फ्लिपकार्ट देख रहे हैं, आप कोई सोशल ऐप देख रहे हैं, आप यू आर डूइंग एनीथिंग। अब उससे क्या हो रहा है कि इट इज वेरी इजी टू एक्सेस द थिंग्स sitting right back at home, doing your other tasks and buying the things at home। आप घर पे बैठे आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाके आप घूमते हैं, देखते हैं, आप घर से एक लिस्ट बना के जाते हैं। इनिशियली क्या होता था? हम मार्केट जाते थे, मैंने तो ये प्रैक्टिस की है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। सो आई यूज टू मेक वन लिस्ट, आई जस्ट टेक द थिंग्स भी, हाँ ये चीजें मिसिंग है, आई नीड टू गेट द थिंग्स डन फ्रॉम द मार्केट। आई वेंट टू द मार्केट, आई फोकस्ड ऑन द थिंग्स, भाई ये चीजें लेनी है, मैंने इन्हीं मार्केट्स पे जाना है, इन्हीं शॉप्स पे जाना है। वंस द थिंग्स आर डन, आई एम बैक टू माई होम। एंड यस, आते जाते कहीं जब when the my whole task is done, while coming back home, तो उस टाइम पे हो सकता है कि मेरा ध्यान इधर उधर जाए, अच्छा चलो कोई एक नई चीज आई है मार्केट में तो देख लें। सो उससे क्या होता था कि हम बहुत फोकस्ड होते थे, हमारी जो शॉपिंग्स होती थी वो बहुत कम होती थी, हमारे बजट्स उतने ही होते थे, एंड हमें ये भी पता होता था ये नेसेसिटीज है, यही लेनी है। आज की डेट में क्या है? हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही हमारी डिमांड करता है कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लोगों के पास ये है, वो उसने ये चीज बाय कर लिया, उसका लेवल लेवल जो लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो ऐसा है, उसके पास ये है। सो समटाइम्स हमें, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस सोशल क्लास को बिलोंग करते हैं, वी हैव टू बिहेव इन अ सच अ वे कि हम उस क्लास में ही रहें। अदरवाइज हम नहीं चाहते कि हमारे घर में हर 2 साल बाद, 4 साल बाद बेड्स चेंज हो। वी नेवर वांटेड कि हमारे हर 5 साल बाद पेंट्स चेंज हो। वी नेवर वांटेड कि हमारे हर रूम में एक एक टीवी हो या स्मार्ट टीवी हो या ऑल सच थिंग्स हो। वी नेवर वांटेड कि हमारे पास एक एक फोन हो हर एक के पास। इनिशियली देयर वाज अ लैंडलाइंस एंड उस टाइम पे भी चीजें होती थी, बट दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इम्पोजिंग अस टू बाय द थिंग्स व्हिच इज अननेसेसरी। सो दिस इज हाउ बेसिकली जो सोशल फीचर है वो ये बताता है हमें कि वो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप अपने सोशल स्टैंडर्डाइज्ड जो आपकी लिविंग है उसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करो, एंड आप जिस क्लास को बिलोंग कर रहे हो, टू बी इन दैट वेरी क्लास यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग विच द फॉलो पीपल आर डूइंग। क्रिएट अवेयरनेस अमंग द रूरल मैसेज। अब इसमें क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं बताती हूँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता। आज की डेट में अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं, एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, तो सिर्फ एक तरह की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। हम आई एम टॉकिंग अबाउट द मेटा एडवर्टाइजिंग, जिसमें कि आप बात करते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, ऑल द सोशल प्लेटफॉर्म्स जो भी आज गिन लो, जितने भी आपके पास है सारे, राइट? सो उन सब पे आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है। उसके अलावा आपकी ईमेल एडवर्टाइजमेंट भी होती है, ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं जिसको आप। इसके अलावा आपकी व्हाट्सएप मार्केटिंग भी होती है, राइट? सो ऐसा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है आज की डेट में, कोई ऐसा ऐप। स्नैपचैट वॉज नॉट मेंट फॉर बिजनेस, व्हाट्सएप फॉर वॉज नॉट मेंट फॉर बिजनेस,
फेसबुक इटसेल्फ वाज नॉट मेंट फॉर बिजनेस, बट हम लोगों ने सोशली इतना प्यार दिया है इन एप्स को कि वो लोग समझने लगे कि हाँ, इन लोगों का गुजारा अब हमारे बिना चल ही नहीं सकता, एंड दैट इज ट्रू। आज की डेट में अगर मैं किसी भी बिजनेस पर्सन को कहूं जिनको शायद फेसबुक चलाना भी नहीं आता था, दे आर कमिंग टू द डिजिटल कंपनीज नाउ टू प्रमोट देयर सेल्व्स ऑन द सोशल मीडिया, बिकॉज दे नो देर इज नो होप लेफ्ट देन द सोशल मीडिया। सो अभी उनके सिस्टम में ये सब चीजें हो गई हैं कि उनको ये सब चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। सो इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट द डेंजरस डिजीजेस। आप इन चीजों के बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हो, आप नई चीजों के बारे में लोगों को एजुकेट कर सकते हो, आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जितने भी आपके नए लीडर्स आने वाले हैं उनके बारे में बता सकते हो। आप यूट्यूब खोलते हो, आपके जो भी अच्छे काम हो रहे हैं, बुरे काम हो रहे हैं आपकी सोसाइटी में, कहाँ पे थेफ्ट हो गया है, कहाँ पे आपके रॉबरी हो गई है, कहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर अवेयर अबाउट एवरीथिंग। सो नाउ डेज आज की ये चीजें हैं फ्यू इयर्स बैक, बट उसके अकॉर्डिंग आज की डेट में अगर आप देखें तो इन चीजों के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट के बिना ही आपका सोशल मीडिया आज की डेट में इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया, यू जस्ट ओपन योर सोशल मीडिया एंड यू कम टू नो, ओके फाइन, भाई जलंधर में ये चल रहा है, अच्छा अमृतसर में ये चल रहा है, अच्छा कुरुक्षेत्र में ये चल रहा है, मुंबई में ये चल रहा है, दिल्ली में ये चल रहा है, ऑल राइट फाइन। सो यू आर अवेयर अबाउट एवरी प्लेस थिंग what is happening in this world. So this is the power of social media, basically how it works. Next comes is the other function of advertising, that is informing. Of course, it informs about the product, services, and offers. That is persuading. It encourages the customer to purchase highlighted benefits. जो भी highlighted benefits होते हैं किसी भी product के, वो बता के आपको product sale किया जाता है। Remind करवाना आपको अपने product के बारे में बार बार advertisement दिखा के, that is also the benefit of or the function of the advertising. ब्रांड बिल्डिंग करना, बार बार एक एड को आप जब देखते हो उसके बारे में आप अवेयर हो जाते हो और आपके माइंड में एक पॉजिटिव इमेज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो, आप किसी कस्टमर अपने किसी सेलिब्रिटी से इंडोर्समेंट कराते हो, या अगर आपका कोई हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है आप किसी डॉक्टर से अपनी इंडोर्समेंट कराते हो, फेथ फैक्टर बढ़ जाता है एंड उसमें चांसेस ऑफ बाइंग भी बढ़ जाते हैं। मार्केट एक्सपेंशन हो रही है, इट हेल्प्स द बिजनेस टू रीच न्यू मार्केट एंड द कस्टमर सेगमेंट। सो कस्टमर सेल्स प्रमोशन दैट कंप्लीट सॉरी कॉम्प्लीमेंट्स डिस्काउंट्स कूपन्स एंड प्रमोशन कैंपेन्स। इससे क्या होता है, सपोर्ट करते हैं सेल्स को। आपने एक बार कोई चीज खरीदी, आपको डिस्काउंट कूपन्स दे दिए जाते हैं, आप नेक्स्ट टाइम बाय करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट कूपन दिया जाएगा। ये भी एक फंक्शन है आपका जो कि आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए बेनिफिशियली होता है। encourage the product difference, that is the highlighting the unique selling point of the product। कैसे आप encourage कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के यूनिक सेलिंग पॉइंट को हाईलाइट करके कि दिस इज हाउ आर प्रोडक्ट इज बेसिकली, सो यू शुड बाय आर प्रोडक्ट। ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, बूस्टिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड बेस्ट बिजनेस रेवेन्यू। अब अगेन सेम चीज है, आपने एक हाइफन का प्रोडक्ट देखा, आपने पूरी एड देख ली, जब आपने पूरी एड देखी उनको पता चल गया भाई ये मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, अब वो आपको बार बार रीटारगेट करेंगे, बार बार ऐड दिखाएंगे, बार बार ऐड दिखाएंगे, जिसकी वजह से एट द टाइम ऑफ सम मंथ्स और सम डेज और सम ईयर्स यू विल इवेंचुअली फील यार चल एक बार बाय करके तो देखें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, 400-500 की चीज ही तो है। सो दिस इज हाउ दे प्ले विद योर माइंड। So next is the classifications of advertisement. Advertisement can be classified based on the criteria such as purpose, target, audience, media type and geographical reach. Below is the structure. So सबसे पहले हम पर्पस के बेसिस के ऊपर देखेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग, उसके बेसिस के ऊपर कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं। सो इसी तरह से टारगेटेड ऑडियंस के बेसिस पे कौन सी हो सकती है, मीडिया टाइप के अकॉर्डिंग कौन सी हो सकती है, जियोग्राफिकल रीच के अकॉर्डिंग हम कौन सी कैसे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। So as far as the based on purpose has been concerned, number one is the informative advertising। आपकी जो एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या न्यू सर्विस कर रहे हो तो उसके बीच आपको ये बताना चाहिए कि आपका इंफॉर्मेशन क्या आप देना चाहते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्या न्यू प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट में खास क्या ऐसा है कि जो मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहे हैं वो उनको बीट कर सके और हम आपका प्रोडक्ट बाय कर सके। सो दिस इज द वन थिंग दैट इज इंफॉर्मेटिव एड। Next is pervasive ad. Just that means convincing consumer to choose a particular brand over a competitors. Again, the same thing कि इतनी ज्यादा influencing ad होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको कृति सनन हाइफन ब्रांड की बताई। There are a lot of serums। किसी ने उस सिरम को इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया होगा, जैसे कि उन्होंने इतने बेनिफिट्स बता दिए, इतनी चीजें बता दी कि इसमें ये ऑयल है, ये चीजें हैं, ये वाटर है, इस तरह से आप यूज करो, इतने दिन यूज करो, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। एंड जहां पे आपको पर्टिकुलर एक नंबर बता दिया जाता है, वहां पे आपका फैक्टर जो फेथ फैक्टर है वो बढ़ जाता है कि अच्छा ठीक है, अगर आप 30 डेज को यूज करोगे तो आपको फर्क पड़ेगा। एक न्यू ब्रांड आया है मार्केट में, फिटकू, यू माइट हैव हर्ड। ये सारी एग्जांपल्स गाइस लिखते जाना,
ये एग्जांपल्स अगर आप अपने एग्जाम में लिखोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, बिकॉज मार्केट की लाइव एग्जांपल्स ही आपको अपने एग्जाम में लिखनी होती हैं। सो फिटको इज अ वन ब्रांड जो कि आपको स्किन ब्राइटनिंग आपकी जो करते हैं, दैट इज फॉर टू यू नो आपकी जो ओडोर होता है, बॉडी ओडोर होता है, उसको वो कम करता है, एंड दैट इज द फ्रेग्रेंस लेस प्रोडक्ट, जो कि आपकी स्किन ब्राइटन भी करता है एंड आपकी बॉडी से जो ओडोर होता है उसको खत्म करता है। तो वो सिर्फ 7 दिन की गारंटी देता है कि आप 7 दिन इस प्रोडक्ट को यूज कर लोगे तो आपकी बॉडी ओडोर जो होगा वो आपसे नहीं आएगा। the people who are facing this issue, they are having bad odor और आपका जो body odor है तो उसको वो उसमें खत्म कर देगा। सो यहाँ पे भी 7 days का वो बता रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग दिस एड अगेन एंड अगेन। इवेंचुअली यू आर फेसिंग एनी इशू रिलेटेड टू बॉडी ओडोर और नॉट, बट जहां पे वो आपको स्किन ब्राइटनिंग का इशू दे रहे हैं, तो इन दोनों में से अगर आप किसी एक में भी लाई करते हो, यू विल फील लाइक कि मुझे ये प्रोडक्ट बाय करके देख लेना चाहिए। अगर 7 दिन में मुझे रिजल्ट पता चल जाएगा, देन व्हाट इज द हार्म ऑफ बाइंग दिस प्रोडक्ट। सो बेसिकली जो आपकी टैगलाइन होती है, जो आपकी हुक होती है, जो आपका कन्विंसिंग मैसेज होता है, दैट हैज टू बी वेरी इंपैक्टफुल। नेक्स्ट इज रिमाइंडिंग एडवर्टाइजमेंट दैट एनफोर्स ब्रांड अवेयरनेस एंड कीप द प्रोडक्ट इनटू द कस्टमर्स माइंड। बार बार आपको ऐड दिखाने का मतलब, जब आप टीवी देखते हो, टीवी में तो आपको पता ही है कि एक ऐड आपको बार बार दिखाई देती है, बट जहां पे आप सोशल मीडिया कंसर्न आप बात करते हो, वहां पे आपको सिर्फ उस रिलेटेड ऐड ही बार बार दिखेगी जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अदरवाइज आपको अननेसेसरी एड्स नहीं दिखेंगी वहां पे। So comparative advertising, that is the direct compares one brand with another brand to highlight the advantages। यहाँ पे आप अपने ब्रांड के साथ दूसरे ब्रांड को करते हो, जैसे कि मैगी एंड yippee। इन दोनों ब्रांड्स को आप कंपेयर करते हो, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आप बताते हो कि भाई ठीक है ना, मैगी में क्या था कि वो स्टिकी हो जाते हैं कुछ देर तक, अगर आपने राइटली कुक नहीं किया उसको या ओवर कुक कर दिया तो वो बहुत थिक हो जाते हैं। बट जहाँ की yippee जो नूडल्स हैं वो ऐसे नहीं होते, आप उनको 4 घंटे भी रख लो, 6 घंटे भी रख लो, it will remain same as it has been cooked just now। So this is how you are comparing your product with the other product, telling the USP of your product and selling your product into the market। Reinforcement advertising aims to reassure existing customers that they made the right purchase। अब reinforcement में क्या है, जिन लोगों ने आपसे प्रोडक्ट पर बाय किया है, आप उनसे बात करते हो, उनसे पूछते हो कि आपका प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, हमारा प्रोडक्ट रीअश्योर करते हो, आप फीडबैक लेते हो एंड उनको बताते हो कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आप उनको कोई ना कोई सेल्स प्रमोशन कूपन ये सब चीजें ऑफर करते हो। नेक्स्ट इज द बेस्ड ऑन द टारगेट ऑडियंस। अब टारगेट ऑडियंस जो आपने कर रखी है उनके बेस्ड के ऊपर आपकी एंडोर्समेंट या टारगेट जो एडवर्टाइजमेंट है वो कैसे रहती है। कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग, दैट मीन्स द टारगेट इंडिविजुअल कस्टमर्स फॉर द पर्सनल यूज। अब आप कुछ ऐसे कंज्यूमर्स को ही टारगेट कर रहे हो जिसको आप, जैसे मैंने फिटको की एग्जांपल दी, उन लोगों को ही ये एड दिखेगी जो इन चीजों से सफर कर रहे हैं, या तो बॉडी ओडोर से या फिर स्किन ब्राइटनिंग के लिए दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग। And the next thing is industrial advertising that aims the business purpose goods for product B2B advertising। B2B advertisement वो कंज्यूमर तक, कस्टमर्स तक नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ मैन्युफैक्चरर, आई एम लुकिंग फॉर द डीलर्स, आई वांट टू रन एन एड एज द टारगेटेड ऑडियंस, कि मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ट्रक बनाने की, फॉर एग्जाम्पल। अब आई एम मैन्युफैक्चरिंग द ट्रक्स, अब मैंने उन ट्रक्स को बेचना है, तो मैं कंज्यूमर्स को तो नहीं ढूंढूंगी, है ना, मतलब ऑब्वियसली, मतलब B2C कस्टमर्स को तो नहीं ढूंढूंगी ना, जिन्होंने उसके अंदर सामान भिजवाना है या जिसने उसको हायर करना है। मैं उन लोगों को ढूंढूंगी जो उसको ओन करना चाहते हैं, जो उसको खरीदना चाहते हैं, एंड आगे फिर ट्रकिंग बिजनेस में जाना चाहते हैं। सो दिस इज हाउ द एडवर्टाइजमेंट वर्क ऑन द टारगेट बेस्ड ऑल्सो। ट्रेड एडवर्टाइजिंग फोकस ऑन द होलसेलर, ट्रेड रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ऑब्वियसली अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है आटे का, राइस का, शुगर का, तो मैं क्या करूंगी, मैं होलसेलर्स ढूंढूंगी जो कि शॉपकीपर्स हैं, जिनके बड़े बड़े स्टोर्स हैं, या फिर रिटेलर्स ढूंढूंगी जो कि शॉपकीपर्स हैं, जिनकी छोटी छोटी शॉप्स हैं विलेजेस में, सिटीज में, आउटस्कर्ट्स में। तो आई विल ट्राई टू टारगेट देम। देन द डायरेक्ट कस्टमर, द डायरेक्ट यूजर, उनको यूज करने के लिए मैं नहीं दूंगी, बिकॉज इनको मैंने बल्क में सामान देना है और सस्ते में देना है। फिर रिटेलर्स जब आपको सेल करेंगे तो वो अपना मार्जिन रख के करेंगे। सो इस तरीके से मेरी टारगेट ऑडियंस इस केस में कस्टमर नहीं रहेगी, बट यस रिटेलर्स एंड होलसेलर्स रहेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे। प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग इज डायरेक्ट एट द प्रोफेशनल, लाइक द डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड लॉयर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक लॉयर हूँ,
राइट, मेरे पास मुझे मुझे केसेस चाहिए। अब मुझे पता है दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बट मुझे वो लोग चाहिए जो एक्चुअल में मेरे से अपना काम करवाना चाहते हैं, चाहे वो क्रिमिनल रिलेटेड हो, चाहे वो चाइल्ड कस्टडी के रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट के रिलेटेड हो, चाहे वो ड्रग्स अब्यूज के रिलेटेड हो, किसी भी रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो। आई वॉन्ट टू हैंडल सच काइंड ऑफ केसेस बिकॉज आई हैव अ टीम ऑफ डिफरेंट लॉयर्स। सो मैं अपनी एड किन लोगों को दिखाऊंगी? सिर्फ उन लोगों को प्रोफेशनली जो लोग इन चीजों से मतलब निकलना चाहते हैं या जो इन लोगों के लिए हेल्प चाहते हैं। सो दिस इज अ प्रोफेशनल टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज बीइंग टारगेटेड ओनली द पीपल who are suffering from all such things. Based on the media type, so advertisement can be classified on the channel used for the communication. As I already explained this, कि अगर आपने बच्चों के रिलेटेड कोई भी चीज शोकेस करनी है या एडवर्टाइज करनी है, उसका एक टाइम होता है। सो वो कौन सा, वो कहाँ पे होगा? वो आपका होगा टीवी पे, जैसे कि ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया। प्रिंट एडवर्टाइजमेंट आपकी होगी न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रोशर्स, फ्लायर्स, उसके लिए जैसे कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो, ऑनलाइन क्लासेस कहीं शुरू हो रही हैं, आप अपने ब्रोशर्स छपवा के न्यूज़पेपर में दे सकते हो। आउटडोर एक्टिविटीज जैसे कि आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि बिल बोर्ड्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, ब्रांड हो गए, बड़े बड़े जो शोरूम्स होते हैं वो इस प्रैक्टिस में होते हैं, जस्ट बिकॉज कि जितना बड़ा बिल बोर्ड वो दिखाएंगे उतना ही वो अपने प्रोडक्ट की या अपने कंज्यूमर्स की लीड को एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द डिजिटल एडवर्टाइजिंग, दैट इज सोशल मीडिया, गूगल एड्स, मेटा एड्स, पीपीसी कैंपेन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, all that comes under this. मोबाइल एडवर्टाइजिंग, दैट इज द एसएमएस मार्केटिंग एंड द इन ऐप एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि जिसको आजकल हम व्हाट्सएप मार्केटिंग बोल देते हैं। So that comes under this type of media type. Direct email advertisement, as I already told you, email पे भी हम अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एंड सिनेमा एडवर्टाइजमेंट भी होती है, जब आप कभी भी जाते हो मूवी देखने के लिए, तो यू सी दैट कि उसमें कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है या कुछ प्रोमोज दिखाए जाते हैं, कुछ न्यू मूवीज अपकमिंग होती हैं उनके टीजर्स दिखाए जाते हैं, या कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, उन प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट्स, वो दैट कम्स अंडर द थिंग कि जो लोगों का इंटरेस्ट उसमें है। अब उसमें आपको रेस्टोरेंट्स दिखा दिए जाएंगे, उसमें आपको इन हाउस जो कॉफी शॉप्स हैं आपके सिनेमा में उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। सिनेमा में सिर्फ अपनी चीजों को प्रमोट किया जाता है, एंड अपने टीजर्स जो अपनी मूवीज आने वाली हैं उनको, उनके रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल रीच, अब लोकल एडवर्टाइजमेंट जो होती है, ज्योग्राफिकल मींस कि हाउ योर एरिया इज बीन कंसर्न्ड। सो लोकल एडवर्टाइजमेंट इज टारगेटेड कस्टमर विद द स्पेसिफिक सिटी और रीजन। नेशनल एडवर्टाइजमेंट कंसर्न हो जाएगी कंट्री बेस पे, जो कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस दिखाएगी आपको। इंटरनेशनल में आप ग्लोबल मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसमें कि ग्लोबल एडवर्टाइजिंग कंपेन एंड एक्सपैंड ब्रांड रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे बैठ के आप अगर एक वेब डेवलपर हो, आप एक सोशल मीडिया हैंडलर हो, आप एक एसईओ एक्सपर्ट हो, आप अगर आईटी के किसी भी चीज में हो, राइट, आप अपनी सर्विस, बेसिकली सर्विस की बात करें, सर्विस के लिए आपको कोई भी टैक्स कुछ भी नहीं देना पड़ता। यू जस्ट सिटिंग इन इंडिया, इन पंजाब, इन जालंधर, एंड यू कैन वर्क फॉर anywhere, any person in this world as far as the service is being concerned। तो आप उनको अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, आप उनको अपनी, अगर उनको कोई वेबसाइट बनानी है, अगर उनको कोई सोशल मीडिया हैंडल करना है, अगर उनको कोई वीडियो एडिटिंग चाहिए, अगर उनको कोई क्रिएटिव डिजाइनिंग चाहिए, अगर उनको जीएमबी अपने लोकल बिजनेस के ऊपर रैंक करना है, तो वो काम आप इंडिया में बैठ के भी कर सकते हो, जिसके लिए दे विल बी पेइंग यू इन डॉलर्स। So this is how the geographical reach is classified as far as the advertising is being concerned. Next is based on the timing and response. So some advertising based on the time, of course कि सीजनल होती है एडवर्टाइजमेंट। अब इसमें ये होता है कि अगर आप जो प्रोमोज आप दिखाते हैं तो वो कहाँ और कब दिखाने चाहिए। अगर वो सीजनिंग एडवर्टाइजिंग है, दैट इज ड्यूरिंग द स्पेसिफिक सीजन। जैसे आप देखते हो मैंगो स्लाइस की जो होती है, गर्मियां शुरू होती हैं तो उसकी एड आनी शुरू हो जाती है। च्यवनप्राश की एड सर्दियां शुरू होती हैं तो आनी शुरू हो जाती हैं। सो दैट इज अ सीजनल एड। स्टेडी एडवर्टाइजमेंट, दैट इज कंटिन्यूअस प्रमोशन थ्रू आउट द ईयर। अब धीरे धीरे करके वो एक एड को चलाते हैं and पूरे साल उसकी प्रमोशन करते हैं। दैट इज अ स्टडी। उनका सीजन नहीं होता, वो पूरे साल में चलती है। जैसे कि मैगी, मैगी का कोई सीजन नहीं है, पूरे साल में मैगी आप खाते हो, एंजॉय करते हो, और उसकी एड भी पूरे साल में आती है। इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग दैट इनकरेजेस यूजर्स फॉर द पोल्स, क्विज, एक्सेट्रा। ये उन चीजों के लिए होती है कि जैसे आजकल आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में देखते हो, वो आपसे पूछते हैं आप कौन सी गाड़ी यूज कर रहे हो, आप कौन सा रिफाइंड यूज कर रहे हो, जो आप उसके पोल कर दोगे, उसके ऊपर आप फिल करोगे उनका सर्वे, उसके रिलेटेड आपको एड्स दिखाई जाएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन?
The categories and classifieds are clear to everyone? Yes, ma'am, clear. All right. So now it comes the advertising as an element of marketing mix. ये आपने already study किया होगा. So there are four type of P's which was initially being introduced into the market. So जब भी हम अपनी advertisement करते हैं तो हमें इन 4 P's को अपने mind में रख के चलना होता है. Number 1 is product, number 2 is price, number 3 is place and number 4 is promotion. कि किस तरह की आप advertisement करना चाहते हो, कि product आपका क्या है, उसका प्राइस क्या है, हाउ मच प्राइस यू आर चार्जिंग फ्रॉम द पीपल, एंड कौन सी जगह पे आप उसको, सेलिंग पॉइंट क्या है आपका. अब तो ऑनलाइन भी मिलती हैं चीजें, बट इनिशियली इट वाज वेरी मच लाइक द पॉइंट ऑफ कंसर्न कि आप जहां पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, व्हाट इज दैट प्लेस. क्योंकि अगर आपका सेलिंग पॉइंट इज नॉट एट द राइट प्लेस, दैट मीन्स यू मे बी लूजिंग द लीड्स. And then the promotion, how you are communicating about the product which you are going to sell. So these are the 4 P's which are very important while you are making your advertisement to be done. So as far as the promotion strategy has been concerned, so advertising is a key promotional tool that helps brand reach engagement and persuade the customers to buy their products or the services. It communicates the brand message and create awareness through the various media channels. फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेडिशनल मीडिया की बात करें तो हमारे पास टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स हैं. डिजिटल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया एंड गूगल एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है. आउटडोर की बात करें तो पोस्टर्स, ट्रांसिट्स, एड्स एंड द बैनर्स हैं. सो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको दी है. कोका कोला यूजेस द टेलीविजन कमर्शियल, सोशल मीडिया एड्स एंड आउटडोर बिलबोर्ड्स टू मेंटेन द ब्रांड अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड. कोका कोला इज अ ब्रांड जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है और वो सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं अपनी प्रमोशन स्ट्रैटेजी में. कोई भी ऐसी चीज उन्होंने छोड़ी नहीं है जहां पे वो अपने आप को प्रमोट नहीं करते हैं. राइट. सो दिस इज हाउ दे आर प्रमोटिंग देमसेल्व्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड एवरीवेयर. Advertising supports product positioning. So advertise helps the positioning of the product to the customer's mind, highlighted by using the benefits, features and value पोजीशन. अब इसमें क्या है, आपके पास ये पता होना चाहिए जो भी आप प्रोडक्ट बाय करने जा रहे हो, अगर वो कॉस्टली है, क्या वो ब्रांडेड है, या बजट फ्रेंडली ब्रांड आपको चाहिए. अब एग्जांपल है, मैंने आपको ये ऑलरेडी एग्जांपल दी है कि जो एप्पल है वो अपनी एडवर्टीजमेंट प्रीमियम एंड इनोवेटर यूजर्स एंड फ्रेंडली इन्फ्लुएंसर कस्टमर परसेप्शन को ही देता है. अब अगर मैं रोलेक्स की बात करूं, रोलेक्स जो है एडवर्टाइज एक्सक्लूसिव एंड प्रीमियम क्वालिटी. रोलेक्स क्यों जाना जाता है, रोलेक्स की वॉचेस या रोलेक्स इज नोन फॉर देयर हाईली केपेबल ब्रांड एंड द बजट फ्रेंडली ब्रांड्स जैसे वॉलमार्ट. अगर आपने कुछ भी बजट फ्रेंडली, आपको आपका माइंड बजट फ्रेंडली है, हर तरह का कंज्यूमर होता है. तो जिस तरह का कंज्यूमर होता है, जिस तरह का उसका माइंडसेट होता है, उसी को टारगेट करने के लिए उसी जगह पे ही आपकी जो प्रमोशंस है वो करी जाती है. अगर आप हाई वैल्यू लोगों को टारगेट करना चाहते हो तो आपका प्रोडक्ट भी उतना ही वैल्यूएबल होना चाहिए एज अ रोलेक्स. बट अगर आप बजट फ्रेंडली टारगेट कर रहे हो कंज्यूमर्स को, तो आपका जो बजट है, लाइक जो आपका प्रोडक्ट है, उसका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी बजट फ्रेंडली ही होना चाहिए. एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंसिंग प्राइस स्ट्रेटजीज. सो प्राइस स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग कैसे इन्फ्लुएंस करती है एडवर्टाइजिंग. नंबर 1 इज प्रीमियम प्राइस. द ब्रांड्स दैट पोजीशन देमसेल्व्स एज हाई एंड लाइक टेस्ला यूज एडवर्टाइजिंग टू जस्टिफाई हायर प्राइस. अब टेस्ला आपको कहे कि भाई ये आज मैं बजट फ्रेंडली लेके आ रहा हूँ गाड़ी आपको, अब एनी वन कैन बाय टेस्ला, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. ऐसी एंडोर्समेंट वो कर ही नहीं सकते. नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डिस्काउंटेड प्राइसेस. दैट मींस द ब्रांड्स रनिंग प्रमोशंस लाइक Amazon, ग्रेट इंडिया सेल. वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उनको ये पता है कि अगर हम सेल लगाएंगे तो जो लोग वेट कर रहे हैं अपने अपना प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए, जिन्होंने कार्ट में रख के प्रोडक्ट्स छोड़ दिए हुए हैं, दे विल मेक अ रश एंड दे विल बाय ऑल द प्रोडक्ट्स एंड शायद साथ में और प्रोडक्ट्स भी बाय कर लें. सो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने